टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું ન્યૂઝ કેપિટલમાં. આપની સાથે હું છું જુહી ગાંધી. ભારતના એક્શનથી હવે આતંકીઓમાં પણ ફફડાટ ફેલાયો છે. પાકિસ્તાનના રોદણા વચ્ચે હવે ટીઆરએફની પણ પીછેહટ જોવા મળી છે. આતંકી હુમલાની જવાબદારી લેનાર ટીઆરએફ હવે ફરી ગયું. હવે ટીઆરએફે કહ્યું, હુમલામાં અમારો કોઈ હાથ નથી. ભારત આકરી કાર્યવાહી કરશે એવા ડરથી ટીઆરએફ ધ્રુજ્યું. ટીઆરએફ ભલે બચવાનો પ્રયાસ કરે પણ ભારત છોડશે નહીં. આતંકીઓને શોધીને ઠાર કરવાનું હવે નક્કી છે. ભારતના એક્શનથી ડરી ગયેલું પાકિસ્તાન, ફફડી ગયેલા આતંકીઓ અને વિશ્વના તમામ નેતાઓનો ભારતને સાથ. આ બધા વચ્ચે યુદ્ધના ભણકારા વાગી રહ્યા છે. ત્યારે ભારતે પાકિસ્તાન સામેની કાર્યવાહીમાં લીધેલા 5 મોટા નિર્ણયો, તેની શું અસર થશે અને જો યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ ઊભી થાય તો પાકિસ્તાનને કેટલું નુકસાન, તે વિશે વિસ્તૃત ચર્ચા કરીએ. આપણી સાથે અત્યારે મહેમાનો જોડાયા છે. મનન ભટ્ટ, જેઓ રક્ષા વિશેષજ્ઞ છે, આપનું સ્વાગત છે સર. ડોક્ટર હિતેશ પટેલ, વિદેશી બાબતોના જાણકાર છે, સર આપનું પણ સ્વાગત છે. અને અફતાબ મુઘેરી, જેઓ પાकिस्तानी पत्रकार છે, જેઓ પણ આપણી સાથે જોડાયા છે. सर आपका भी खूब खूब स्वागत है न्यूज़ कैपिटल में. સૌથી પહેલા મનન સર, આપને એ સવાલ કે એક તરફ ટીઆરએફ દ્વારા હમણાં જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે અમારો આ હુમલામાં કોઈ હાથ નથી, અમે કંઈ કર્યું નથી, ને અત્યાર સુધી હુમલાની જવાબદારી ટીઆરએફે લીધી હતી. હવે લાગે છે કે ભારતે જે પ્રમાણે 5 મોટા નિર્ણયો કર્યા અને જે પ્રમાણે હવે રણનીતિને જે ચક્રવ્યૂહ રચવામાં આવી રહ્યું છે, એનાથી ટીઆરએફ પણ હવે ડરી ગયું છે. જોઈ બે, ટીઆરએફ નહીં, આટલી બધી પોલિશ્ડ લેંગ્વેજ જે જોવામાં આવી છે ટીઆરએફના લેટેસ્ટ પ્રેસ રિલીઝમાં, જેમાં એ લોકો કહે છે કે અમે ઓડિટ કર્યું તો અમને ખબર પડી કે આજે અમારા એક સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પરથી મૂકવામાં આવેલી જે પોસ્ટ હતી, જેમાં અમે પહેલગામના હુમલાની જવાબદારી લીધી હતી, એ ઓડિટમાં જાણવા મળ્યું છે કે અમે નહોતું કર્યું. એટલે આ બધું કોઈ ટીઆરએફ નથી કરી રહી. ટીઆરએફના બેકડ્રોપમાં પાકિસ્તાનની ઇન્ટર સર્વિસીસ ઇન્ટેલિજન્સ જ આ બધું કરાવી રહી છે. એની સિવાય આ કોઈ ન કરી શકે. આટલું બધું પોલીસ ડિગ્રીઝ ટીઆરએફના પંચરિયા આતંકીઓનું ના હોઈ શકે. એ ચોક્કસ ને ચોક્કસ પાકિસ્તાન અને DGISPR જ આની પાછળ છે. એટલે અને હવે એટલી વાત, એ તો બહુ દીવા જેવી સ્પષ્ટ વાત છે કે જ્યારે ઇન્ડિયા એક ઇકોનોમિક સુપર પાવર છે, એનો મિલિટરી માઇટ જ્યારે પાકિસ્તાન સામે છાતી કાઢીને ઊભો છે ને, ત્યારે પાકિસ્તાનનું ટીઆરએફ હોય કે પછી એના ચટપુંજિયા આર્મીના અધિકારીઓ કે પછી એનો જનરલ આસિમ મુનીર, જે અત્યારે છુપાઈને બેઠો છે, અંડરગ્રાઉન્ડ થઈ ગયો છે, આ બધા ડરેલા છે. પરંતુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આ પળ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે પાકિસ્તાનને ડરાવવા માટે આ અત્યારે સ્ટેચર જે લીધું છે નથી લીધું. આપણો હેતુ પાકિસ્તાનને ડરાવવાનો નથી, આપણો હેતુ પાકિસ્તાનને પનિશ કરવાનો છે. ડર અને પનિશમેન્ટ, એની વચ્ચેનો જે ફરક છે એ ભારતે યાદ રાખવો પડશે. અને જે યોગ્ય સજા પાકિસ્તાની સેનાને મળવી જોઈએ, એ સજા આપ્યા વિના ભારત પોતાનું પોસ્ચર જો ડ્રોપબેક કરશે તો ફરીવાર 2001માં જે થયું હતું કે આપણે એક વર્ષ સુધી મિલિટરી પોસ્ચર લીધું ને પછી બેક ઓફ થયા, એવું થશે. આ વખતે મને નથી લાગતું કે ખાસ કરીને પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું નિવેદન સાંભળ્યા પછી કે ભારત તેનું પોસ્ચર, કેવલ પોસ્ચરિંગ, સ્ટ્રેટેજિક પોસ્ચરિંગ કરી રહ્યું હોય. ભારત બહુ સિરિયસ મિલિટરી એક્શન લેવાનું છે અને એના રિપરકશન્સ, કેમ કે જે લોકો ભારત ઉપર આતંકી હુમલા માટે જવાબદાર છે એ બધાને તો આવશે જ. ઉપરાંત પાકિસ્તાનની પ્રજાનો જે રોષ ફાટી નીકળશે, પાકિસ્તાનમાં નુકસાન થવાથી પાકિસ્તાની પ્રજા આ બધાને ટેક ફોર એકાઉન્ટ લેવાની છે. બધા એકાઉન્ટેબલ આમાં, પછી ISI હોય કે પછી પાકિસ્તાની સેના હોય કે પછી ફોર ધેટ મેટર આ બધા આતંકી સંગઠનોના ખાસ આકાઓ બની બેઠેલા આકાઓ હોય, આ બધાને પાકિસ્તાનની પ્રજા પ્રશ્ન પૂછવાની છે કે આજે પાકિસ્તાનની જે હાલત થશે આગળ જતા, એને માટે જવાબદાર કોણ છે? એ લોકો જ છે. અને they had bring it that thing upon themselves. એટલે હવે એ લોકો અચાનક આ બધી ડિસ્ક્લેમર મારે છે અને પોતે એમ કહે છે કે અમે આ નહોતું કરાવ્યું. પણ આ બધું દીવા જેવું સ્પષ્ટ છે અને ભારતના એક્શન્સને, ભારતના અગ્રેસિવ એક્શન્સને હવે કોઈ પણ પ્રકારની બહાનાબાજી રોકી શકે તેમ નથી. પાકિસ્તાનને જે પનિશમેન્ટ મળવાનું છે એ મળીને જ રહેશે. ઓકે, આ જ વાતનો જવાબ આપણે અફતાબજી પાસેથી લઈએ. અફતાબજી, પાકિસ્તાન
भारत ने पाकिस्तान के लिए 5 जो डिसीजंस लिए, जिन पे रोक लगाई गई है, सबसे पहले अभी पाकिस्तान में चर्चा हो रही है शिमला अग्रीमेंट को तोड़ने की। वो धमकी दे रहा है भारत को कि हम शिमला अग्रीमेंट तोड़ देंगे। पाकिस्तान चाहता है भारत से सब कुछ तोड़ देने का। यकीनन ही पत्थर फेंक के फूल की तवक्को तो आप नहीं रख सकते। चाहे कोई भी आप बात करेंगे तो क्या पाकिस्तान चुप करके बैठेगा? पाकिस्तान भी अपना फैसला सुनाएगा और फैसला पाकिस्तान ने सुना लिया है। तो ये तो तय नहीं है कि आप जो है पत्थर फेंकेंगे और हम फूल का गुलदस्ता लेके, मालाएं लेके और सीमा पे आ जाएंगे और आपके बीएसएफ के जवानों को और आपकी जो है मौजूदा हुकूमत को पहनाएंगे कि जी आपने बढ़िया काम किया है और आपने जो है हमारे ऊपर हमारा पानी भी बंद कर रहे हैं और सब चीजें कर रहे हैं और हम जो है फूल की माला लेके आपकी तरफ आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। जब आप गोली का जवाब तो फिर गोली से मिलेगा। अगर फिर आप समझती हैं कि पाकिस्तान एक जो इन्होंने अपनी भाषा में बोला थोड़ा बहुत, क्योंकि सिंधी भाषा और आपकी थोड़ी बहुत मिलती है, क्योंकि मैं अंडरस्टैंड कर रहा था, इन्होंने जो बात की थोड़ी बहुत मुझे समझ में आई। मगर हिंदी में करते तो मुझे बहुत और आसानी होती इनको जवाब देने में। मगर ये तो तय है कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू महफूज है, सिख महफूज हैं, क्रिश्चियन महफूज हैं। तो भारत ने भी काफी पाकिस्तानियों को पनाह दी हुई है। आफ्ताब जी, काफी पाकिस्तानी अब तक यहाँ पे रह ही रहे थे। ये जो हादसा हुआ उसके बाद भारत सरकार ने डिसीजन लिया है, एक्शन का रिएक्शन आया है। डायरेक्टली रिएक्शन नहीं दिया है भारत ने। आतंकी हमला हुआ, हमारे 26 लोग मारे गए, उसके बाद रिएक्शन आया हमारा। मुझे ये बताएं जिस चैनल में आप काम करती हैं, आपके सिक्योरिटी गार्ड कितने खड़े हुए हैं बाहर चेक करने में? जब अपने ऑफिस में आती हैं और जाते हैं आपके लोग, तो लोग चेक करते हैं। अगर इधर से कोई चोरी आपके चैनल से, कोई हार्ड ड्राइव चोरी हो जाए, कोई कंप्यूटर चोरी हो जाए, कि चोर क्या पाकिस्तानी होगा या कोई बाहर वाला होगा? यकीनन नहीं, चोर तो आपके यहाँ अंदर से ही होगा ना कोई कोई टीवी चैनल में। पर आप नहीं जानते कि पाकिस्तान हमेशा से पनाह देता है आतंकियों को। आप नहीं जानते, आपको नहीं पता है आपका देश हमेशा से आतंकियों को पनाह देता है। हाफिज सईद देख लो, आप दाऊद देख लो, ओसामा बिन लादेन देख लो, कितने भी उठा के देख लो। आईना दिखाने जा रहा हूँ, थोड़ा चेहरा देखिएगा कितना मस्त चेहरा है। आईना सर आपको देखने की जरूरत है, आईना आपको देखने की जरूरत है। हमने बहुत अच्छे से देखा हुआ है सर, हमारे 26 लोग गए। ये सीमा पे जंग नहीं है और ये कोई जीत और हार की बात नहीं है, ये हकीकत पे मबनी बात है, ये जो आपको तहम्मुल से सुननी चाहिए होंगी। 8 लाख से ज्यादा फौज, 16,000 रॉ के इंटेलिजेंस एजेंसियां जो कि लोग काम कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, उसके बावजूद आतंकवादी कहें, दहशतगर्द कहें, प्लांटेड ये हमला था और हमला हो जाता है। क्या आपके सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ भंग पी के सोई हुई थी? क्या वो दारू पी के सोई हुई थी? वो क्या 2 तकिए लगा के सोए हुए थे? किनकी जिम्मेदारी थी कि जो है आम वहां पे लोगों को जो है सुरक्षा या उनको सिक्योरिटी देना? सर पाकिस्तान का और आतंक और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के पर्याय है, पूरी दुनिया जानती है। हाफिज सईद से उठाकर सारे आतंकी को पनाह दी हुई है सर पाकिस्तान ने। सुनिए, और आप ऐसा बोल रहे हैं, ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है। पाकिस्तान ने कल 2 दिन से बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है। कल पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सक्खर के अंदर जलसे में कह दिया। बिलावल भुट्टो ने जो बोला, उन्होंने बोला कि आप पानी बंद करोगे, आप पानी बंद करोगे, हम खून बहाएंगे। आपके नेता जो जुबान पे कंट्रोल नहीं रख रहे, इतने 26 लोग गए, आतंकी हमला हुआ। हमने तो कभी, हमारे कोई भी नेता ने, देश के कोई भी नेता ने ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं किया, और आपके नेता देखो क्या बोल रहे हैं वो लोग। शायद आपको बादाम खाने चाहिए, आपको जो है कश्मीर के बादाम, नहीं तो मैं अपने पाकिस्तान से बादाम, आप मुझे एड्रेस दे दिए, मैं भेज देता हूं, वो खा लिए कि आपके नेता क्या कुछ कहते हैं। आपके नेता, आपके टीवी चैनल, जाफर एक्सप्रेस पे हमला होता है, बलूचिस्तान के अंदर हमला होता है, हमारे आम लोग मारे जाते हैं, आपका बयान आता है, आप उल्टा क्या करते हैं कि बीएलए के लोगों को अपने टीवी चैनल पे आतंकवादियों को, हम वो टॉपिक पे बात करें। उस हादसे के बाद हमारे किसी भी नेता ने कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोला है। आप अपने नेता की स्टेटमेंट के बारे में बात करें, जो खून बहाने की बात करें। वॉर के लिए तैयार है पाकिस्तान के पास वॉर के लिए शक्ति है। पाकिस्तान भारत के साथ वॉर कर सकता है। शक्ति है तो लड़के देखें ना ये फिल्म। अच्छा सुनिए, स्क्रिप्ट राइटर एक ही है आपका। पुलवामा में पहले सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला होता है, उस पे आप कानवाई पे हमला होता है, लोग शहीद हो जाते हैं, जिनकी हम भी निंदा करते हैं, हम भी मजम्मत करते हैं। फिर दूसरी दफा हमला होता है, फिर भी उसकी मजम्मत करते हैं। तीसरी दफा ये अभी हुआ, इसकी मजम्मत करते हैं। तो ये स्क्रिप्ट राइटर ये तो चेंज करे ना।
सिंधु अग्रीमेंट के तहत खाली पानी बंद करने की बात हुई, तभी से आपके जो नेता है वो अनाप शनाप बात कर रहे हैं, वो अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है। उनको खुद को नहीं मालूम है कि वो क्या बोल रहे हैं। अभी देखो 11 दिन चले उतना ऑयल है आपके पास, अगर ऑयल सप्लाई इंडिया बंद कर देगा तो कहां से लाओगे ऑयल? ऐसे ही आप नी पे आ जाओगे। अरे छोड़ दे, ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। हमने एयर स्पेस बंद कर दिया है तो आपकी जो है हवाएं उड़ गई हैं, हिंदुस्तान की नींदें उड़ गई हैं। और इतना खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते, ईश्वर के वास्ते हिंदुस्तानियों को इतना मत डराएं कि पाकिस्तानियों से कि रात को नींद में भी जाग उठते हैं कि शायद पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के लोग आ ना जाएं। इतना ना मत डराएं, क्योंकि ये मीडिया हमने तो ऐसा कहीं नहीं देखा सर। खानी पड़ेगी। हम लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मीडिया और गोदी मीडिया जो है, मैं नहीं कहता, राहुल गांधी कहता है, आपके वहां के नेता कहते हैं, मैं नहीं कहता। भाई मुझ पे नहीं कीजिएगा। ऐसा बोला है कि वो सरकार के साथ है, वो हमारे प्रधानमंत्री के साथ है। अपोजिशन के लोग हैं, ये आपको कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। अभी हमारे अपोजिशन के लोग भी कुछ नहीं कहते हैं, वो भी बोल रहे हैं कि जो सरकार डिसीजन लेगी वो उनके साथ है। जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर ने आईना नहीं दिखाया, आपको आईना दिखाया है आपकी अपोजिशन ने, क्योंकि बिहार में 6 महीने के बाद इलेक्शन है। बुरी तरह बीजेपी को इस वक्त मुश्किल का सामना है, तो 26 बंदों की बलि चढ़ा दी। ये तो बड़ा काम कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा, हाथ पैर वगैरह की बातें कर रहे हैं सर। आप एलिगेशंस लगा रहे हैं जिसमें कोई तथ्य नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, आप मैं नहीं कह रहा। मैं आपसे यही मैडम रिक्वेस्ट कर रहा था, मैं ये नहीं कह रहा। आसिफ मुनीर नहीं कह रहे, और ये कह रहे हैं कि आसिफ मुनीर बंकर में चले गए, तो इनको बता दें कि आसिफ मुनीर से मिलने का इतना शौक है तो भेज दूं आसिफ मुनीर को बॉर्डर के उस पार, पता लग जाएगा कि वो बंकर में है या कहां पे है। आप मुझे ये बताओ कि कल उठ के भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर होता है तो पाकिस्तान सह पाएगा ये वॉर? पाकिस्तान में इतनी शक्ति है कि वॉर कर सकता है भारत के सामने ना? पाकिस्तान की कल भी हमने बीएसएफ के जवान को, आपने खबर चलाई है, आपने दिखाई है। अगर कहें तो मैं अभी आपको यहां से वीडियो भेज सकता हूं कि आपके जवान को हमने रंगे हाथों पकड़ा, और फिर जो है बीएसएफ और फ्लैग जो है मीटिंग हुई, उसके तहत जो है जो हमारा वायदा हुआ है, उस वजह से हमने न कहीं जो है पाकिस्तान आर्मी ने ये सोचा कि इसको छोड़ देते हैं। ऐसी हरकत करेंगे तो पहले भी चाय पिला के भेजा था। अभी भी आपके वायुसेना एयरफोर्स ने अपने ही लोगों के ऊपर आपके नेता कंफर्म कर रहे हैं, आपके नेता कंफर्म कर रहे हैं सर कि हम आतंकियों को 30 साल से पनाह दे रहे हैं। आपके नेता ने ये कंफर्म किया है ऑन टीवी के हम आतंकी को पनाह दे रहे हैं, उनको पाल पोस रहे हैं। ये कंफर्मेशन आया हुआ है। आपको शायद से देखने की जरूरत है, आपने वो वीडियो या वो क्लिप आपके पास नहीं पहुंची है शायद। जो बम गिराए हैं आम नागरिकों पे, आम शहरियों पे, एयरफोर्स के ऊपर जो आपके पायलट ने बम गिराए हैं, जो आपने खबर दिखाई है, मैंने नहीं दिखाई, उसमें कोशिश कीजिएगा कि आईएसआई का तो पायलट नहीं था, ये पाकिस्तानी एयरफोर्स का तो पायलट नहीं था, जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का जहाज उड़ा के और हिंदुस्तानियों पे बमबारी कर रहा है। इसमें भी आप ढूंढे कहीं ना कहीं पाकिस्तानी तो नहीं है, कहीं आईएसआई का तो नहीं, कोई आसिफ मुनीर पाकिस्तान कंफर्म कर चुका है, आपके ही नेता कंफर्म कर चुके हैं कि मुझे इसका जवाब दे दें। जो आम नागरिकों के ऊपर, आम शहरियों के ऊपर एयरफोर्स ने बमबारी की है, उसमें पाकिस्तानी तो पायलट नहीं था, कोई पाकिस्तानी आतंकवादी तो नहीं था। ये मुझे अगर आप बताएंगी तो कम से कम रात को मैं चैन से सोऊंगा कि जी इसमें जो है पाकिस्तानी था या इंडियन था। माना कि गलती से गिर गया, इसको तस्लीम तो करें। आपके नेता ने कंफर्म किया है सर, आपके नेता ने कंफर्म, आपका नेता कंफर्म कर रहा है कि हाँ पाकिस्तान 30 सालों से आतंकियों को पनाह दे रहा है, उनको पाल पोस रहा है। तो ये कंफर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ है? और अब आप ऐसा बोल रहे हो कि पाकिस्तान भी आतंकियों से घिरा हुआ है, वो भी त्रस्त है, वो त्रस्त नहीं है, सांप पाला हुआ है जो सांप आपको डंक रहा है अभी। हमने तो नहीं कहा कि पाकिस्तान गिरा हुआ है, हम तो कह रहे हम आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, हमारे ऊपर हमला होता है, हम जवाब करते हैं, हम ये आपकी तरह रोना नहीं रोते, दुनिया को नहीं बताते। जो पालोगे, जो बोओगे वैसा आपको मिलेगा, जो आप जो जमीन में बोओगे वैसा आपको मिलेगा। आपने पनाह दी 30 सालों तक, तो अभी आप भुगतोगे सर। आपको आने वाली जनरेशन, जो आपके बच्चे होंगे, उनको ये पता लगेगा कि हमारे बुजुर्गों ने इंतहा पसंदी पे और बीजेपी ने और आरएसएस की उस
फिलॉसफी पे जो है, जो हिंदुस्तान का सर बुनियाद हमारा रखे फ्यूचर गए, बहुत अच्छा वो होने आप वाला तक- है, हम आप बहुत देखिएगा अच्छे क्या हाथों होगा। में है, हमारा देश बहुत कौन है? अच्छे हाथों में है, हमारा कौन है? फ्यूचर भी भूटान बहुत आपके अच्छा साथ होगा, नहीं है, हमारे बच्चे नेपाल भी बहुत आपके अच्छा साथ नहीं दिखने है, वाले हैं। आप श्रीलंका अपना आपके देखो, साथ नहीं है, बांग्लादेश आपके साथ नहीं है, ईरान आपके साथ नहीं है, अमेरिका अफगानिस्तान हमारे आपके साथ है, साथ नहीं है, पाकिस्तान आपका रशिया दुश्मन हमारे साथ तो है, कौन? बाकी सारे देश मैं तो हमारे ये साथ कह रहा है। हूं कि इसराइल जो और हमें आपके साथ इस्लामिक कंट्रीज की जरूरत भी नहीं है। नेतन्याहू ने कल आपके मोदी जी को फोन किया है, आपने ये खबर नहीं दी। उन्होंने कहा कि कोई स्क्रिप्ट राइटर तो मोदी जी चेंज करें, हम एहतजाज किस पे करें। नेतन्याहू ने कहा कि कोई कम से कम स्क्रिप्ट राइटर तो चेंज करें। सारे हमले जो होते हैं वो एक ही वक्त में होते हैं। 10 लाख आपको फौज भी कैसे है, पता चला 16,000 रॉ के सर? एजेंट आपको भी फोन हैं। आया था सर? आपको नेतन्याहू ने आपको फोन किया था कि स्क्रिप्ट चेंज करने की बात हुई है? आपको पर्सनल फोन आया सर? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि स्क्रिप्ट राइटर तो चेंज करें। कैसे पता चला आपको कि उन्होंने मोदी जी से ये बात की है? आपको कैसे पता आप चला? खबर बता रहे हैं कि भाई नेतन्याहू ने फोन किया, उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट अच्छा। राइटर चेंज करें क्योंकि 8 लाख फौज 16,000 रॉ के एजेंट, फिर भी हमला हो जाता है आतंकवादियों का, तो कम से कम हम दुनिया को शर्म से मुंह कैसे दिखाएंगे? ओके मनन भाई આપણી સાથે જોડાયેલા છે। मनन भाई आप પણ સીધી રીતે વાત કરી શકો છો આફતાબભાઈ સાથે। आफ्ताब जी जय हिंद। देखिए, पाकिस्तान एज अ स्टेट क्राफ्ट ये पाकिस्तान आतंक को यूज करता आया है पिछले कई दशकों से। अब थोड़ा हमें बोलने दे तो बड़े अच्छा होगा। सर आपने जय हिंद कहा तो मुझे भी हक है, मैं जय पाकिस्तान कह पिछले सकता कई हूं कि नहीं दशकों कह से सकता? पाकिस्तान ने, चाहे वो अफगानिस्तान के पर्वत हो, चाहे कश्मीर में रास्तों पर बहता लहू हो, पाकिस्तान ने आतंक को एज ए स्टेट क्राफ्ट यूज किया है। पाकिस्तान ने एज ए पॉलिसी आतंक को और जिहाद को अपना लिया है। उस बात को एक्सेप्ट करना होगा। अभी 1 या 2 दिन पहले ही आपके मिनिस्टर ने कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर हमने मुजाहिदीन को तालीम दी अफगानिस्तान में लड़ने के लिए सोवियत के अगेंस्ट। तो कश्मीर के लोगों को आप कश्मीर में जो आप आतंकी भेज रहे हैं उन्हें आपका स्टेट कहता है, अभी बहुत रीसेंट बात है, आपके यहाँ के लोग उनको फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के कट्टरपंथी लोग कहीं प्राकृतिक आपदा आती है, उन बच्चों को बरगलाकर, उनको उठाकर, उनको कट्टरपंथी बना कर भारत भेज रहे हैं। कभी पंजाब में हमला कर रहे हैं, कभी कश्मीर में हमला कर रहे हैं। हमारी एथनिसिटी एक है, इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, तो उस एथनिसिटी का फ़ायदा उठा के लोग यहाँ घुस जा रहे हैं। कई दशकों पुराने संबंध हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ हमारे लोगों को कट्टरपंथी की तरफ ले जाके, अक्रॉस द बॉर्डर ले जाके उनको ट्रेन किया जाता है। और अब परिस्थिति ये आई है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, चाहे अभी बलूचिस्तान में जो आग लगी है, तो आज परिस्थिति ये है कि आपका मुल्क खुद आतंक से ग्रस्त है, आतंक से परेशान है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। बट हालत ये है कि ऐसे आतंकी जिन्होंने आपके यहाँ वो पेशावर की स्कूल में जिस आतंकियों ने बम ब्लास्ट किया था, वो आतंकी भी आज खुले घूम रहे हैं। तो आपकी बात हो गई तो अभी मैं बात आतंक करूं को एज ए क्योंकि स्टेट आप क्राफ्ट आप समझ एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए साहब, आपको एक बात बताऊं, आज की जो परिस्थिति है, मैं आपकी परिस्थिति समझ रहा हूं। देखिए साहब, मैं आपकी सिचुएशन समझ रहा हूं। पाकिस्तान आर्मी, देखिए हम एक जमहूरियत वाले मुल्क से आ रहे हैं। यहाँ पे आप जो कह रहे हो ना, देखिए साहब, आप जो कह रहे हो ना कि भारत में ये सरकार चला रहा है, बीजेपी सरकार, देखिए ये एक जमहूरियत वाला मुल्क है। यहाँ की वर्दी अपने लीडर्स को चुन के नहीं भेजती। यहाँ की वर्दी, यहाँ की फौज लीडर्स को सिलेक्ट नहीं करती। पाकिस्तान में पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान में पूरी दुनिया जानती है कि ये जो वर्दी है उसके पीछे दहशतगर्दी है। आपकी वर्दी सिलेक्ट करती है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। जहां इमरान खान जीत के बैठे हैं, उनको जेल में डाल दिया है और फिर पपेट सरकार चलाई जा रही है। आवाज नहीं जा रही तो इनको थोड़ा म्यूट करवा लें, इनको कहे कि तअम्मुल से सुन ले। मैं इनका बड़ा लेक्चर नहीं सुनने आया क्योंकि बात की है, तो अभी थोड़ा सुनिएगा। आपने कहा भाई साहब, आपकी बात हमने 15-20 मिनट तक सुनी है। आपकी बात हमने 15-20 मिनट तक सुनी है, तो अभी आपको भी थोड़ा शांति रखें, थोड़ा शांति रखें, हमको सुन लीजिए। देखिए साहब, थोड़ा सा सुन लीजिए। आपने बात तो खत्म होने दे पहले। हाँ, जवाब सुन लूंगा आपका, जवाब बिल्कुल सुन लूंगा, जवाब बिल्कुल सुन लूंगा, जवाब बिल्कुल सुन लूंगा। हम जो है बीजेपी के जो है देखिए, नागरिक हैं, आपको सुनेंगे। ये पक्का है, ये पक्का है भाई साहब,
कि मोदी जी ये दहशतगर्दी जो फौज ने फैला रखी है, ये गंद जो फौज ने फैला रखी है, इसको रोकने के लिए भारत एक्शन लेगा। देखिए, अच्छा, भारत ये एक्शन जो लेगा, दहशतगर्दी तो आप लोगों ने फैला रखी है, जो गंद आप लोगों ने मचा रखी है, उसके खिलाफ भारत एक्शन लेगा। और अब ये स्टेटक्राफ्ट, अब ये दहशतगर्दी का स्टेटक्राफ्ट अब चलेगा नहीं। पाकिस्तान विल बी टॉट अ लेसन। ऐसा लेसन आपको सिखाया जाएगा, ऐसा लेसन आपको सिखाया जाएगा। खास करके जनरल असीम मुनीर जो चीफ पे बैठे हैं, उनको ऐसा लेसन सिखाया जाएगा। भाई साहब, ये कब मत दिखाइए। वो 93,000 लोगों की जिनकी पैंट डाउन कराई गई थी, ठीक है, ये जो वो कब दिखाइए, जिन 93,000 2 महीने तक आपके 93,000 पंचर वाले अब्दुल्लों को हमने खाना खिलाया था। याद करो, बांग्लादेश में 93,000 पंचर वालों ने सरेंडर किया था। अब दोबारा आ जाइएगा, चाय पिलाएंगे। हाँ, पक्का अभिनंदन को चाय पिलाई, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मेरी बुक जाके पढ़ लीजिएगा, बालाकोट हैशटैग वहाँ क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। आपके जो 93,000 अब्दुल पंचर वालों को हमने चाय पिलाई थी ना, 2 महीने तक, ये जो चाय उनको याद करो। जो पानी है वो पानी भी बंद होने वाला है, तो आपको बिना पानी की चाय पीनी पड़ेगी। मैंने सुन ली। आफ्ताब जी, नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने वो कब दिखाया। आफ्ताब जी, अब जो चाय पी रहे हो वो थोड़े दिन में बिना पानी की होने वाली है। उस चाय के कप को नहीं, पानी हमारे पास बहुत है, पानी बहुत है। आफ्ताब साहब, वो 93,000 कहाँ है पानी? पानी तो अभी सब निकल गया है आपका, आपके हाथों से पानी निकल गया, सिर पे से भी निकल गया है। युद्ध में कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने आपके होश उड़ा दिए। 93,000 वही मुआहदा लोगों ने सरेंडर किया था। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो किया था, अभिमन्यु ने सरेंडर नहीं किया था। थोड़ा पानी ले लीजिए हाथ में। अभिमन्यु ने आपका जहाज सर, थोड़ा पानी हाथ में ले लीजिए, आप चुल्लू पर पानी में डूब रही है। अभिमन्यु ने सरेंडर नहीं किया था। भुट्टो के नवासे ने कह दिया जो आपकी नींद उड़ी में। अब सुनिए ना, थोड़ा सुनिए। अभी आपने कहा कि आतंकवादी हो रहे, आतंकवाद जो है वहाँ पे कश्मीर में होता है, दहशतगर्द पहुंच जाते हैं। तो कम से कम ये बताएं कि ये 16,000 रॉ के एजेंट जो कश्मीर में है, आपने चाय का कप दिखाया, मुझे जवाब देने दीजिए। आपने चाय का कप दिखाया, जो है आर्मी की जो रिजल्ट है, आपने चाय का कप दिखाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। गूगल पे आपने चाय का कप दिखाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप मेरा जवाब सुन लीजिए। ना, आपने चाय का कप दिखाया ना, आप मेरा जवाब सुन लीजिए। 16,000 वो लोग क्या कर रहे थे वहां पे, रॉ के एजेंट? इतने तो कश्मीरी नहीं, चाय ठीक है, चाय ठीक है। अभी आपने चाय का कप दिखाया भाई साहब, आपको, आप सुन लीजिए। आफ्ताब जी, चाय का कप आपने दिखाया। अभिनंदन का विमान, अभिनंदन ने आपका F-16 गिराया, अभिनंदन ने आपका F-16 गिराया, उसके बाद उसका विमान गिराया गया, उसे सरेंडर नहीं किया। आपके 93,000 लोगों ने 71 के जंग में आपके 93,000 लोगों ने सरेंडर किया, उनकी पैंटें उतरी। साहब 71 के जंग में आपके 93,000 लोगों ने और आपके जनरल ने सरेंडर किया, उनकी पैंटें उतरी, उन्होंने अपने हथियार सरेंडर किए और उनको खाना भी खिलाया। उन अब्दुल पंचर वालों को हमने खाना भी खिलाया, उनको चाय भी पिलाई। भाई मेरे उसका भी बिल आपको भेजा जाएगा। बात कर रहे हैं, ये और उनको पूछिए, जिस पे आप बात कर रहे हैं, वो ये जो तमगे लगा के बैठे ना आपके जनरल साहब, उनको पूछिए कि उन्होंने कौन सी जंग जीती है। ये ख्वाब नहीं देख रहे। 2026 में पाकिस्तान से बात कर रहे हैं जो न्यूक्लियर पावर है। ये सोचिएगा, ये ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है। घास खा के रहोगे, घास खा के जियोगे, 100 रुपए किलो आटा खाओगे, 100 रुपए किलो आटा खाओगे, घास खा के जियोगे, मगर बोलोगे कि हम न्यूक्लियर पावर है। जो है वो पाकिस्तान पे डालते तो रोजी है पाकिस्तान में रोजी रोटी है। हिंदुस्तानी आपके ऊपर नंबर 1 आर्मी का जो पंचर वाले से जाके पूछो साइकिल को मेंटेन करने का आप लोग क्या मेंटेन करोगे? बात सुन लीजिए, अगर कोई बोल रहा है वो अब्दुल पंचर वाले से जाके पूछो, वो अपनी साइकिल को मेंटेन करने का तो पैसा नहीं है, वो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल को कैसे मेंटेन करोगे? अरे बीएसएफ के जवानों को खाने का पैसा नहीं है। न्यूक्लियर नेशन है, ये गाना छोड़ दो। अगर दम है तो मिसाइलें बाहर निकालो, हम भी देखते हैं। जवानों को खाना देने का पैसा नहीं है, आप जंग लड़ोगे भूखे नंगे पेट पे, वो कैसे जंग लड़ेंगे बेचारे? मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके जो है फौजी कह रहे हैं, अगर कहो तो मैं आपको अभी यहाँ पे वीडियो दिखा सकता हूँ। पाकिस्तान का देखिए अफ्ताब जी, पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं, वो कंगाली पे आ गए, इंडिया नहीं है, भारत नहीं आया हुआ है। भारत के पास बहुत ताकत है, हर जगह से ताकत है, हमारी ताकत का भी परिचय भी आपको नहीं हुआ है। जो है आपके रोते हैं कि हमें खाना पूरा नहीं मिलता, कैसे लड़ेंगे? हम तो कहीं नहीं रो रहे, हम तो अच्छी जॉब कर रहे हैं, हम अच्छे स्तर पर रह रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छा होने वाला है। वीडियो भेजूं, चलाएंगे। हिंदुस्तान को
वीडियो आप भेजो, अपना दिखाएं देखिए, उतार हमने के। पाकिस्तान के बहुत सारे विजुअल्स भी देखे हैं, वहाँ के लोगों की बातें भी सुनी है। वो चला दे, थोड़ा हिंदुस्तानियों को आपकी दिखा भी देना पाकिस्तान की बीएसएफ आवाम के चाहती जवान है क्या कि कह युद्ध रहे हैं। हो। पाकिस्तान पे जो डेप्थ है उनका। अच्छा ये बताओ, ये हमास वाले पीओजेके में क्या कर रहे थे? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में पिछले हफ्ते जो हमास के लोग आए थे वो क्यों आए थे? आईएसआई को जो मिले वो क्यों आए थे, जरा बताना। क्या आतंकवाद आपके देश का मेन स्ट्रीम धर्म नहीं है? आजाद कश्मीर है, हमारी असेंबली अलग है, हमारे यहाँ पाकिस्तानी कश्मीरी खुश हैं। आपके यहाँ 8 लाख फौज एक एक कश्मीरियों की बहनों की माओ की इज्जत लूटती है। वहां पर जो है केमिकल गन से उनकी आंखें आप निकाल देते हैं। 8 लाख फौज होने के बावजूद अगर कोई ड्रामा होता है, जो स्क्रिप्ट आपके फिल्म में जो दिखाई जाती है वही स्क्रिप्ट चलाते हैं, तो इससे दुनिया मानने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। 26 लोगों की बलि चढ़ाते हमारी कश्मीर घाटी और हमारे लेह लद्दाख के बीच में 12 महीने वाली कनेक्टिविटी है। रेलवे श्रीनगर तक पहुंची है। बिहार के नेता पिछले साल 30 लाख यात्री कश्मीर घूमने आए थे। दिखाता हूँ कि बिहार के कौन से कश्मीर की बात कर रहे हो? शर्म से डूब मरना चाहिए कि 26 आम हिंदुस्तानियों की जो है बलि चढ़ा दी। हितेश भाई आप पर बात करी શકો છો। देखिए ये हिंदुस्तान है, ये जमहूरियत है, यहाँ नेता विरोध करते हैं, यहाँ पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को, लीडरशिप को क्वेश्चन पूछा जाता है। जो लोग सत्ता में हैं उन्हें क्वेश्चन पूछने का, ये जमहूरियत कहते हैं इसको। ये मैं बताऊं बड़े दुख के साथ कि आपको जमहूरियत की आदत नहीं है, इसलिए आप हमारे नेताओं को कोट कर रहे हैं। हमारे यहाँ इसको इंसान मिले हैं मुझे पूरे इंडियन टीवी चैनल पे जिन्होंने ये मार दिया। अफ्ताब जी पहले आराम से पानी पी लीजिए, आपको पानी की जरूरत है। पानी अभी घटने वाला है, पानी अभी रुकने वाला है, आपके पास पानी नहीं आएगा। जितने दिन अभी पीना है तो पी लीजिए, क्योंकि हमारे सवाल से आपके पसीने छूट रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग, आपके सिर में यहाँ पे पसीने आ रहे हैं। आप पानी पी लीजिए थोड़ा और मुंह थोड़ा धो लीजिए। नहीं मैं चाय पी रहा हूँ, मुझे पसीने नहीं आ रहे हैं। देखो अभी सवालों से हमारे मुझे इसीलिए मैं पसीने के अभी पानी रुकने वाला है, अभी पानी धीरे धीरे कम होने वाला है आपके पास, तो अभी जितना पीना है आप पी सकते हो। पाकिस्तान नहीं है। अरे चाय पी रहा था मैं, पसीने चाय नहीं भी बिना पानी के मिलने वाली है, चाय भी बिना पानी के ही मिलने वाली है। आपके पास पानी नहीं बचने वाला है। तो ये बड़ी अच्छी बात, परेशान मत हो। मैं तो कहूंगा आप लोगों को भी सीखना चाहिए, आप लोग भी क्वेश्चन पूछना आर्मी को शुरू कीजिए। ये जमहूरियत है, हिंदुस्तान है, यहाँ हमारे लीडरशिप को क्वेश्चन पूछने का। मनन भाई, हितेश भाई आप बोलो। हितेश भाई અવાજ મળે છે હિતેશભાઈ મારો? બોલવું છે બોલી દો. હિતેશભાઈ સાથે ફરી એકવાર સંપર્ક સાધવાનો પ્રયત્ન કરીએ, એમને કદાચ કંઈક ટેકનિકલ ખામી છે। મનનભાઈ આપ કઈ કહી રહ્યા હતા? आपके कॉफी का कप, भाईजान आपके कॉफी का कप बड़ा सुख होता है। मैं 93,000 कॉफी के कप और वो संडास धोने के मग यहाँ दिखा नहीं सकता जो आपके लोगों को हमें देने पड़े थे। हालत इतनी खराब थी। देखिए अभिनंदन ने आपका विमान गिराया, आपका हवाई जहाज गिराया, उसके हवाई जहाज को आप के लोगों ने गिराया, उसने सरेंडर नहीं किया, उसने ही डिडंट सरेंडर। वो तो एक युद्ध कैदी था, आपके लोगों ने सरेंडर किया, अपनी पैंट डाउन की, अपने हथियार जो है डाले। बड़ा तकलीफ पहुंचाता है। अच्छा ये बताइए बीजेपी के ये बताइए पाकिस्तान आज तक, पाकिस्तान 47 में बना, आज तक कितनी जंगें जीता है? बड़ा चढ़ाता है। एक फौजी को क्या पकड़ लिया और उस फौजी को पकड़ा जिसने आखिर तक झुका नहीं है, और 10 दिन में उसको छोड़ना पड़ा। हितेशभाई હવે अवाज आवे છે हितेशभाई, મને अभी आप शिमला मुआहदा जो है कब दिखाते हैं ना, जब आप अभिनंदन का फोटो दिखाते हो ना, हमारे लिए हीरो है शिमला मुआहदा। जी आप अपनी बात कर रहे हैं ना, आप जो कॉफी का दिखाइएगा फिर छोड़ के दिखाते हैं। आफ्ताब जी सुन लीजिए, आफ्ताब जी हितेश जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जी हितेश भाई, त्रासवाद, कोई भी देश अगर त्रासवाद को सपोर्ट कर रहा है तो उसका खामियाजा वो देश को भी भुगतना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल पावर, इट्स ए मास्टर की ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। 370 के नाबूदी के बाद जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रहा था, मेरे पास जो कुछ डेटा है
यही साल के अंदर 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग टूरिज्म के माध्यम से जम्मू कश्मीर गए थे। वहाँ का जो आम युवा है, जो आम नागरिक है, वह पूरे देश की मुख्य प्रवाह में अभी आ रहा था। मेरे पास जो डेटा है, पर मंथ 40 से 50,000 वो कमा रहे थे। तो ये सब जो डेवलपमेंट हो रहा है वह शायद पाकिस्तान देख नहीं पाया। उसी की वजह से ये पाकिस्तान ने ये पूरा हम पर हमला किया है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये तो शुरुआत है। भारत में अभी जो दृढ़ राज की इच्छा शक्ति वाली लीडरशिप है, वह बहुत सारे अलग अलग विषयों को लेकर पाकिस्तान को सबक सिखा सकती है। जैसे हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं। जो त्रासवादी एक्टिविटी वाले जो एरिया है, जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर हम अपनी मिसाइल्स को डालकर भी उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमारी जो दरियाई जो सीमाएं हैं पाकिस्तान की, उसको हम कवर कर कर उसका जो व्यापार है उसको हम रोक सकते हैं। इकोनॉमिकली हम उसको चारों तरफ से घेर कर उसको अकेला कर सकते हैं। हमने देखा है कि विश्व के राजकारण में आज पाकिस्तान एक निष्फल देश है, उसका इकोनॉमिकली भी कोई वजूद अभी रहा नहीं है। तो वो भी भारत अभी सोच रहा है। चाइना और अमेरिका, आफ्ताब जी ने અત્યારે હસવું આવે છે। आफ्ताब जी, अभी आपको हंसी आ रही है, थोड़े दिन में आप रोने वाले हो। आफ्ताब जी, हंसी आ रही है, आप थोड़े दिन में रोने वाले हो। आप वो उनकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा हूँ, इसीलिए हंस रहा हूँ। ये हकीकत है। उनको हाँ, बोलने आपने- दीजिए। जो भी देश त्रासवाद को सपोर्ट करेगा, जो भी देश त्रासवाद को सपोर्ट करेगा, सुनिए ना, उसका मुआवजा वो देश को भरना ही पड़ेगा। सुनिए जी, बोलिए, इसमें कोई बेमत नहीं है। तर्जुमान बीजेपी, बोलिए। वो बोल ये रहे हैं, पर इसमें आप कोई ठीक से बेमत सुन नहीं है। नहीं रहे हो, आप हंस रहे हो और उनकी क्या बात करेंगे? पे। और तो जो अभी हंस लो, निर्दोष, फिर रो हो जो गया। मासूम लोग मर चुके हैं, लिख के आए, वो थोड़ा पढ़ के बताएं जो लिख के आए। इसकी थोड़ा ऊपर गंभीरता पेपर को करके हमें- पढ़ें। और क्या करेंगे? और क्या करेंगे अंकल? और क्या करेंगे? थोड़ा ऊपर हमें करके शर्म पेपर में आनी पढ़ें तो चाहिए। सही। इस तरह की अरे यार, एक्टिविटी फिर को शर्म शर्म पे- आनी चाहिए। देखो फिर ये टीवी पे अगर इस तरह से शर्म वाली बात करोगे, ये मैं पूरा इसमें डेटा शर्म है याद मेरे दिलाऊंगा पास। तो फिर आज आपको जम्मू पर आपको कश्मीर का कहाँ विकास हो रहा है, वो आप शर्म देख नहीं पा रहे आपको हो। कहाँ शर्म है? कहाँ सुधरने का नाम ले जम्मू रहा है कश्मीर का पाकिस्तान? जो विकास हो रहा है, देखिए, वहाँ पर इनको जो कहें कि इकोनॉमिकल तमीज के डेवलपमेंट दायरे हो में रहा बात है, करेंगे वो आप तो देख बात नहीं पा होगी। रहे इनको हो। कहेंगे मुझे अगर आप अब्यूज ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो मुझे भी बोलना आता है। मैंने कहा कि आप मुझे पढ़ के बताएं क्या क्या करेंगे। वो आप शर्म पे चले गए, फिर आप पढ़ के बताएं क्या क्या करेंगे। और तो मैं आपसे गलत थोड़ी जम्मू पूछ रहा हूं। कश्मीर का पाकिस्तान के पास कुछ है करने के लिए? जम्मू कश्मीर के लोग कुछ कर सकते हैं। न्यूक्लियर विस्फोट की धमकी दे बिजनेस रहा है कर रहे हैं, पाकिस्तान आगे के पास बढ़ रहे कुछ हैं। और है और कुछ चलाने को भी आता है। हाँ। कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग भी फिल्म है में वहाँ सनी पे। देओल की तरह, फिल्म में सनी देओल की तरह ख्वाब ओके में ओके, कहाँ बढ़ रहे आप हैं? जी जी जी, आप सब जुड़े रहिए अभी। 24 जी जी घंटे जी से जी, 48 घंटे आप सब से जुड़े रहिए। तो અત્યારે સમય છે આ ચર્ચામાં એક નાનકડા બ્રેકનો। બ્રેક બાદ ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે। તો ભારતના એક્શનથી પાકિસ્તાન અત્યારે ફફડી ઉઠ્યું છે। ભારતે તો હજુ શરૂઆત કરી છે, પણ આ એક્શનથી આતંકીઓમાં ફફડાટ ફેલાયો છે। ભારતના એક્શનથી હવે આતંકીઓમાં ફફડાટ, પાકિસ્તાનના રોદડા વચ્ચે હવે ટીઆરએફની પણ પીછેહટ જોવા મળી। પહેલા ટીઆરએફે આ હુમલાની, આતંકી હુમલાની જવાબદારી લીધી હતી, પરંતુ હવે આતંકી હુમલાની જવાબદારી લેનાર ટીઆરએફ ફરી ગયું છે। હવે ટીઆરએફે કહ્યું છે કે હુમલામાં અમારો કોઈ હાથ નથી। જો હવે ટીઆરએફે હાથ ઊંચા કર્યા છે, કારણ કે ભારત આકરી કાર્યવાહી કરશે એવો ડર છે ટીઆરએફને। એના કારણે ટીઆરએફ અત્યારે ધ્રુજી ઉઠ્યું છે। આપણી સાથે મનનભાઈ જોડાયેલા છે, સાથે પાકિસ્તાનથી પત્રકાર અફતાબ જોડાયેલા છે, અને સાથે कर्नल राहुल शर्मा जोड़ाया है, रक्षा विशेषज्ञ है। आप त्रणेवનું ફરી એક વખત સ્વાગત છે। राहुल जी, अब ब्रेक पे जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि पाकिस्तान અત્યારે ભલે યુદ્ધની તૈયારી કરી રહ્યું હોય કે એવું નેરેટિવ ઊભો કરી રહ્યું હોય કે હવે યુદ્ધ થશે ભારત સાથે, પણ પાકિસ્તાનની કોઈ તાકાત નથી યુદ્ધ કરવાની। આપનું શું માનવું છે અત્યારે જે રીતનું નેરેટિવ રચાઈ રહ્યું છે એને લઈને? पाकिस्तान जो नैरेटिव अभी बनाने की कोशिश कर रहा है वो घबराहट वाला नैरेटिव है। उसको ये पता है कि उसकी जो हालत है, चाहे इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो डिप्लोमेटिक सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, इंटरनेशनल तबके में जो उसका और प्लस उसकी जो इंटरनल सिचुएशंस है, उसमें वो इस टाइम पे किसी भी तरह के
युद्ध को अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये जो भी घटना हुई है उसका अगर ये एस्केलेट हो गई तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। राहुल जी, हमारे साथ जो पाकिस्तान से पत्रकार जुड़े हुए हैं आफ्ताब जी, पर उनका मानना है कि पाकिस्तान सब अफोर्ड कर सकता है और 2026 में वो न्यूक्लियर देश भी बनने वाला है। उनका ऐसा मानना है, भले ही पाकिस्तान में रोजी ना हो, भले ही पाकिस्तान में खाने की कमी हो, पानी भी अभी बंद होने वाला है, पर उनका ऐसा मानना है कि वो सब कर सकते हैं। गलती हो गई, न्यूक्लियर है, बनने वाला नहीं है, मैंने ये नहीं कहा। न्यूक्लियर है, थोड़ा होश के नाखून लें। थोड़े आपने प्रोड्यूसर को कहते हैं कि वो आपको स्क्रिप्ट जो है सही लिख के देता है। हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, सब स्पॉन्टेनियस है सर, कुछ भी नहीं है। आपके सवालों के जवाब, आपका एक्शन का रिएक्शन हमेशा से भारत भी दे रहा है और मैं भी दे रही हूं। ये दिवाली में फोड़ने के लिए नहीं रखे। न्यूक्लियर है पाकिस्तान आज की डेट में, 2026 में आपके साथ ही न्यूक्लियर हुआ। ओके जी राहुल जी, दुरुस्त की, बहुत जी शुक्रिया। राहुल जी, सुबह जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि जो लड़ने वाले होते हैं वो अपने ताकत के ऊपर भरोसा करते हैं। एग्जैक्टली। और जो ज्यादा घबराते हैं वो उतना ज्यादा बोलते हैं। तो ये बात पे भरोसा होना भी चाहिए। मिसाइल, आपने मिसाइल दिवाली के लिए नहीं रखी, हमको भी पता है, ठीक है, लेकिन क्या आप इस वक्त लड़ाई चाहते हैं? ये पूरा जो सिलसिला है ये एक चीज के लिए, अभी आप देखिए इस पूरा जो अगर अभी सर इनको इनका कर्जा याद दिलवा देते हैं, एक बार इनका कर्जा याद दिलवा देते हैं। 14,000 करोड़ डॉलर, 14,000 करोड़ डॉलर इनका कर्जा है जो इन्हें 3 महीने के अंदर अंदर भुगतना है। आप पहले, उन्होंने मेरे से, देखिए एंकर ने मेरे से कुछ पूछा है, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ जी। अब दे। इस पूरे मसले में सिर्फ एक ही व्यक्ति को फायदा हुआ है या एक ही महकमे को फायदा हुआ है, और वो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ और आर्मी। पिछले 2-3 साल से जो उनकी फजीयत उन्हीं के देश में हो रही है, पहले 3 साल पहले तक कोई पाकिस्तान में आर्मी को क्रिटिसाइज भी नहीं करता था, सवाल भी नहीं पूछता था। आज ये सिचुएशन है कि अभी 9 दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, यानी कि जो विदेश में बसे हुए पाकिस्तानी हैं, उनके एक सम्मेलन को एड्रेस किया था। उसके बाद उनकी उस स्पीच के बारे में खुद पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की बातें उठी हैं, आप उसको देख के ताजुब करेंगे, क्योंकि कभी पाकिस्तान की आर्मी का इतना बुरा हश्र पाकिस्तान में ही उनके परसेप्शन में नहीं हुआ था। लेकिन अब इस एक हरकत की वजह से पूरा पाकिस्तान, पूरा का पूरा पाकिस्तान एकजुट हो गया है। किसके पीछे एकजुट हुआ है? आर्मी और आर्मी चीफ के पीछे हुआ। सो ये आर्मी और आर्मी चीफ के लिए सबसे फायदे वाली बात रही है। लेकिन क्या पाकिस्तान देश के लिए फायदे की बात है या पाकिस्तान की जनता के लिए फायदे की बात है? इस तरह का जो टेंशन है उससे क्या उनकी हालत सुधरेगी? और हालत खराब ही होगी ना। इस वक्त पाकिस्तान और वहां के लोग अपने इकोनॉमिक सिचुएशन से जूझ रहे हैं। बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में जो सिचुएशन हो रही है उससे जूझ रहे हैं। इस टाइम पे इस तरह का टेंशन लेने का किसी को कोई मतलब नहीं था, किसी को कोई फायदा नहीं था। फिर भी ये क्यों हुआ? सोचने वाली बात है। लॉजिकली कोई नहीं करना चाहे इस तरह की बात। फिर ये क्यों हुआ? किसको फायदा हुआ? सिर्फ एक महकमा है मेरे हिसाब से, वो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ और आर्मी। अब पूरा पाकिस्तान उनके पीछे हो गया, जो कल तक उनको थू कर रहा था, उनके बातों पे सवाल जवाब कर रहा था, उनका क्रिटिसाइज कर रहा था, इमरान खान को रिहा करने की बात कर रहा था, पाकिस्तान आर्मी को कातिल कह रहा था। अब वो सारा पाकिस्तान उनके साथ हो गया। सो ये जो कह रहे हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं है। ये डेफिनेटली किसी को फायदा करने के लिए किया गया है। और ये जो जिस सोच का ये नतीजा है वो बहुत ही घटिया सोच है। अपने छोटे से फायदे के लिए, अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए जो उन्होंने किया है, यह अमानवीय है। और जहां तक न्यूक्लियर और ये सब की बातें हैं, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह की बातें नहीं करेगा। न्यूक्लियर हथियार ज्यादातर डिटरेंस के लिए होता है, उसको इस्तेमाल करने के लिए नहीं होता है। रशिया और यूक्रेन के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस, पिछले 2-2.5 साल से उनके यहाँ लड़ाई चल रही है। रशिया चाहता तो कभी भी न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करके यूक्रेन की ऐसी तैसी कर सकता था। यूक्रेन के पास तो कोई न्यूक्लियर हथियार भी नहीं, फिर भी नहीं किया उसने। तो ये सारी बातें ठीक है, जोश जोश में कहने के लिए अच्छी बातें होती हैं, लेकिन हकीकत में क्या आप या हम कोई भी इसको यूज करना चाहते हैं? नहीं, वो लास्ट रिजॉर्ट होता है। उसको सबसे पहले ही आपकी थोड़ी सी तू मैं हो और आपने कहा था हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर लेंगे,
लास्ट रिजोर्ट पे आप पहले ही आ गए तो ठीक है, आपको जो सही लगता है आप बोलिए। और यहाँ पे जो आपकी सरकार अपनी जगह पे काम कर रही है, हमारी सरकार अपनी जगह पे काम कर रही होगी, मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी तरह स्टूडियो पे बैठ के डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, वो दोनों अपने अपने जगह पे अपना अपना काम कर रहे हैं। और उसका नतीजा कुछ दिनों में दिख जाएगा, आपको आपकी सरकार का काम दिखेगा, हमको हमारी सरकार का काम दिखेगा। तो इतना इमोशनल मत होइए। बोल गए अभी, अगर आप एंकर, अगर आपके सवाल पूरा हो गया तो मैं इनको जवाब दे सकूं बड़े तअम्मुल से। उससे इन्होंने पहले बात की, मैंने इनकी बात में बीच में नहीं रोका। बिल्कुल आफ्ताब जी, अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे बोल रहे थे कि बादाम खाइए, आपकी याददाश्त शायद कमज़ोर हो गई है। अभी आपकी याददाश्त, आपको बादाम खाने की इसलिए ज़रूरत है, कश्मीर से ही मंगवा लेना, कश्मीर में बहुत अच्छी मिलती है। मैं ये बोलने जा रही हूँ कि जो 14,000 करोड़ डॉलर का जो अभी कर्जा है पाकिस्तान पे, जो कर्जा है पहले वो निपटाए, फिर वॉर की बात करें, भारत से लड़ने की बात करें। अगर ये ख्याली पुलाव पका रहा है पाकिस्तान, तो पहले आफ्ताब जी, पहले ये जो कर्जा है जो 3 महीने में आपको चुकाना है, 3 महीने में पाकिस्तान को ये कर्जा चुकाना है 14,000 करोड़ डॉलर, तो पहले उसकी बात करते हैं। मुझे इनका जवाब दे देने दे। बड़ा इन्होंने जबरदस्त बात की कि इमरान खान और पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान में जो है हालात बहुत खराब हैं, तो थोड़ा जवाब देने देना, थोड़ा इनको मैं भी थोड़ा बताऊं कि पाकिस्तान में हालात क्या हैं। पाकिस्तान में जनाब हालात बहुत जबरदस्त है, हमने पाकिस्तान के हालात देखे हैं, हमारे सोशल मीडिया पे आते हैं, हम वीडियोस देखते हैं, हम रील्स देखते हैं, पाकिस्तान के आवाम की आवाज सुनते हैं, आप परेशान वो मत हो, कितने त्रस्त हैं वो भी हम सुनते हैं, और हम सुनिए नया तो भी सही खाते ना। हैं। जब वो बोल रहे थे तो आप तो जो है ना बड़ी रुइयां डाल के कान में सुकून से बैठी हुई, मैं बोल रहा हूँ तो चलाने शुरू हो जाती हैं। नहीं चिल्ला रही हूँ मैं, आपको खाली बता रही हूँ, आप बताओ। आप सुने ना, फिर मुझे बात तो कर रहे थे ना अभी। उन्होंने, मैंने उनकी बड़ी तमुल से बात सुनी, मेरा भी जवाब वो अच्छी तरीके से सुन रहे हैं, वो बड़े डिसेंट बंदे हैं, पढ़े लिखे बंदे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। बिल्कुल, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। मैं अग्री कर रही हूँ आपकी ये तारीफ के साथ, मैं अग्री कर रही हूँ जी। बिल्कुल, अब सुनिएगा, मैंने कभी ये नहीं कहा कि हमने पाकिस्तान में, इन्होंने कहा पाकिस्तान न्यूक्लियर, उन्होंने कहा 2026 में न्यूक्लियर बना है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने इनको समझाया, मैंने कहा दोनों देश जो हैं एक साथ न्यूक्लियर पावर हुए हैं, पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर स्टेट है, हिंदुस्तान भी एक न्यूक्लियर स्टेट है। मैंने इनको ये समझाने की बात की थी। हमारे जो साथी एंकर हैं, बहुत अलग थे, अभी आप अलग बोल रहे हो, आपके वर्ड्स उस टाइम अलग थे। दोबारा पीछे करके देखिएगा तो मैंने उस वक्त क्या कहा था, मैंने कहा जिस वक्त मैंने कहा जिस वक्त, अभी इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि दोनों देश जो है न्यूक्लियर पावर हैं, कहीं ना कहीं ये जो घटना हुई है, ये वाकया हुआ है, इस पे सीरियस नोट पे बात करना पड़ेगी, बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप इल्जाम लगाएं, कोई सबूत ना दें और कहें कि जी मेरी चोरी हो गई, मेरे लोग मर गए। कहीं ना कहीं सबूत तो देना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं बात तो करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप जो है डेड बॉडियां रख के और कहें कि जी पाकिस्तानी ने मार दिया, या मैं रख के कहूं इंडियन ने मार दिया, दोनों तरफ से। जो लोग हैं जिनके फैमिली मेंबर्स गए आफ्ताब जी, जो वाइफ है जिनका हस्बैंड को वहां पे गोली मार के जिनकी हत्या की हुई है, उनसे पूछिए आप जाके कि क्या हुआ था, क्या पूछा था उन लोगों ने पूछा कि आप मुस्लिम है कि नहीं है, कलमा पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, धर्म को बीच में लाया गया है। जिनको जाफर एक्सप्रेस में हाईजैक किया गया, जिन आतंकवादियों ने मारा, आप उनकी निंदा करते हैं, आप कहती हैं कि उनके लिए भी आप कुछ शब्द कहेंगी, कोई अल्फाज कहेंगी। हम भारत हमेशा से आतंक के खिलाफ है, मैं भी आतंक के खिलाफ हूँ, चाहे वो किसी भी देश में हो रहा है, मैं उसके खिलाफ हूँ। रॉ फंडिंग हमला था, उस पे आप हम एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान अपने पापों की सजा भुगत रहा है। पाकिस्तान ने पनाह दी है, जो सांप को पाला है वो सांप भी अभी आपको डंक दे रहा है। ये भी तो आपके पापों की सजा है। जब कश्मीर के पापों की सजा है, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सेना वहाँ पे जो हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, लोग आपसे लड़ेंगे। आफ्ताब साहब, ये हमारी सेना ने केमिकल वेपन कब इस्तेमाल की, मुझे भी नहीं पता है। नहीं, उनके पास ज्यादा डिटेल्स है, वो बहुत रोज बादाम खाते हैं, उनके पास थोड़ा होने से पहले की डिटेल्स आ जाती है। नंबर दे दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या क्या इस्तेमाल किया। आप तो ख्याली कहाँ जमहूरियत है मेरे भाई, ये ग्लासेस उतार दे जमहूरियत वाले, लगे। आफ्ताब जी राहुल जी को सुन लेते हैं। आफ्ताब जी राहुल जी कुछ पति की बात कर रहे होंगे। आफ्ताब जी कितने लोग रहते हैं कश्मीर में? फूड कच्चा आटा है। आफ्ताब जी राहुल जी कुछ बोल रहे हैं, पति की बात कर रहे हैं, डिसेंट है, उनको सुन लेते हैं, पढ़े लिखे।
16,000 रॉ के एजेंट, फिर भी हमला हो जाता है। ये तो बताएं ना लोगों को। 8 लाख फौज, कश्मीर में लोग रहते कितने, थोड़ा बताएंगे मुझे? परेशान वही हो तो गए। बोल रहे हैं कि ये जो परेशान होने की सब बात किया है। है, कहीं पे भी टूरिस्ट सिविलियन कहीं पे है 2-3 हजार, वहां पे 2 लोग हथियार लेके जाए और 30 लोग को मार दे, कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई भी कर अरे सकता फिर है। ये 16,000 क्या, 16,000 रॉ के एजेंट भंग पी के सोए हुए थे, दारू पी के सोए हुए थे वहां पे जम्मू कश्मीर में। जी जी, जहां पर लोगों को मारा है। टैंकर मोहतरमा, आप ये कैसे कैसे गंवार और बेवकूफ लोगों को ले आती है और हमारे उनसे अरे डिस्कशन भी गवार कराती है। और हमारी बेवकूफ तो बेइज्जती आप कर रहे है। हैं। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि 16,000 फौज, खुद पे सवाल अच्छा पूछ रहे हैं पाकिस्तान में आतंकी हमला होता है, पाकिस्तान में अगर अरे कहीं पे मिसाल भी है, पाकिस्तान में मिसाल अगर हमला 8 होता है लाख तो फौज, वहाँ की 8 सेना लाख क्या के कर रही फौज होती है, के वहाँ होने की के आर्मी क्या कर रही होती है, वहाँ की पुलिस क्या कर रही होती है, वो भी बाहर क्या दारू पी के सो रहे होते हैं। भाई- कौन है? हाँ, अभी ट्रेन को अगवा किया था बलूचिस्तान के साथ जो अरे, चल रहा है यही तो कह आपका। रहा हूं। मैंने कहा कि हमने फिर उसकी अपने आप पे ऊपर इन्वेस्टिगेशन की, जहां भी हमारे पास क्या हमला हुआ, इन्वेस्टिगेशन दोबारा की? हमने क्या हमला इन्वेस्टिगेशन होने क्या नहीं की? दिया। और क्या यही तो रोना है। आपने कश्मीर क्या में ही स्टेप तीसरी लिए, दफा आपने हमला हो क्या जाता है। स्टेप लिए जो निर्दोष चलिए लोगों तो की आप जान मेरा गई, सवाल आपने है क्या ना, स्टेप लिए उसके ये ऊपर? टेक्निकल सवाल है कि 3 दफा एक जगह पर हमला हो जाता है तो कम से कम 8 लाख फौज क्या कर रही थी, ये सवाल नहीं हो सकता। कल बलूचिस्तान में आपके 10 लोग उड़ गए, कैसे हुआ ये? कहां पे उड़े? नहीं, सब भांग और दारू पी के कहीं पे सो रहे थे कहाँ सारे पे? जो पुलिस आईडी से उड़े भाई हैं, कहाँ पे? आप ही कोई के- पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में जो है रॉ फंडिंग के लोग जो काम करते हैं उनको हम मुंह तोड़ जवाब भी दे दें और जो है दोबारा वहां पे कब वाकया दिया होने नहीं देते। हमारी मुंह अफवाह तोड़ लड़ जवाब सकती है। कब दिया, ये जानना चाहते हैं आफ्ताब जी, कब दिया पाकिस्तान ने आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब? हमें तो नहीं पता, हमारे तो यहाँ पे कहीं पे नहीं आया है, हमने कभी नहीं पढ़ा है कि पाकिस्तान ने आतंकियों के खिलाफ ये किया वो कैसे किया, कुछ नहीं आया हमारे यहाँ पे। कैसे चलाएंगे ये हालत ये ये है कैसे कि दिखाएंगे जिन आप? सांपों क्यों को नहीं देखा दिखाएंगे, मुझे क्यों आप नहीं पता दिखाएंगे? है, अगर हमला वही होता पलट है के तो उन्हें दिखाएगा, डस रहे हैं। पाकिस्तान अगर कोई कार्रवाई करेगा, चाहे वो कोई तालिबान स्टेप हो, लेगा, तो हम क्यों नहीं चाहे दिखाएंगे? बलूचिस्तान विद्रोही हो, ऑपरेशन में जो जवाब ठीक दिया है। है वो आपको मैं भेज जिस दूंगा कि आतंक कितने को आतंकवादी हमने मारे हैं। इन्होंने अपने बैकयार्ड में रियर किया, कुलभूषण यादव जी, जिस मनन- आतंक को मनन इन्होंने भाई, पाला क्या पोसा, जी, मनन उस जी। पाकिस्तान कैसे को, जवाब दिया है? जी मनन भाई जी, जिस कुलभूषण आतंक यादव को जैसा इन्होंने जिन आप आतंकियों मनन को, भाई जिन को सांपों सुन को लेते, इन्होंने मनन भाई अपने को सुन बैकयार्ड में लेते। पाला पोसा, अब वही सांप इन्हें पलट के डस रहे हैं। पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है और मुझे बड़ा दुख होता है अरे आपके ये पास सोचते दिक्कत हुए, ये है ये कि देखते आप- हुए कि आप- जिन आतंकी आप सांपों अपने गिरफ्तार को इन्होंने अपने नहीं बैकयार्ड में आप पाला, अपने गिरफ्तार वही नहीं सांप आज आप उन्हें डस रोडों रहे पे हैं इल्जाम और लगाते उनके हैं। किए हुए, चोरी में उनके जो किए लोग करे का हैं, फल आप आज जो हम लोग भोग हैं, वही भोगेंगे। उनके भारत के द्वारा जो निकलेगा। प्यूनिटिव स्ट्राइक्स होगी पाकिस्तान के ऊपर, जिसके मनन- डर से, जी मनन भाई। जिसके डर से पाकिस्तान का हर एक नेता, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की फौज डरे हुए हैं। उस प्यूनिटिव स्ट्राइक के डर से, जिस भारत की प्यूनिटिव स्ट्राइक के डर से पाकिस्तान डरा हुआ है, वो स्ट्राइक भी इन्हीं सांपों के हरकतों का नतीजा है। और ये स्ट्राइक भाई जब बताओ तो होगी, सही, कहाँ पे? ये स्ट्राइक जब होंगी तो जो आज जो होगी? पाकिस्तान मैंने डरा कहा हुआ ये है चाय तक वो तो तैयार पाकिस्तान है। आप आए, रोएगा आपको चाय पिला और के पछताएगा। भेजेंगे। उन्होंने जो आतंक को अभी सपोर्ट तो किया भी था, नहीं लेंगे, आपकी दोबारा अगली भी नहीं 7 लेंगे। पूछते पछताएंगे कि आपने अभिनंदन से पहले भी आतंक चाय को के क्यों पैसे सपोर्ट देंगे, किया अभी था। नहीं लेंगे। भारत अब अभी वो भी एक्शन चाय के लेगा पैसे नहीं लेंगे, पाकिस्तान कॉफी के के पैसे खिलाफ। नहीं लेंगे। अब डिप्लोमेटिक सिर्फ एक्शन उनकी की बात पत्नी खत्म जेब में हुई। डालिएगा अब कि ये क्या बातें तो चीज़ है। हमने आपसे करना, ये अरे भैया, चाय मैं और कह संडास रहा के हूं कि अभिनंदन को मग पहले भी चाय पिला के 93,000 भेजी चाय थी, और अभी संडास पिला के के मग हमारे यहाँ भेजेंगे। रखे हुए नहीं है। हमने तो ये उसको भेज दिए। 24-48 घंटे की आपके धमकी, 93,000 ईस्ट पाकिस्तान में जो आपके सैनिकों ने सरेंडर भारत किया का ना, प्रेशर इतना था, आपके 93,000 सैनिकों ने जो सरेंडर किया, उनके चाय और संडास के मुद्दे हमने भेज दिए। आपने अच्छा रविंद्र साहब का मुद्दा संभाल के रखा। 24 घंटे गुजर उस फौजी ने सरेंडर नहीं किया था। उस फौजी ने, शहरों पे डाल दिए। अभिनंदन एक ऐसा क्या हुआ? फौजी है, 100 पाकिस्तानी आ गए, क्या हुआ? 100 पाकिस्तानी आ गए, बट उसने सरेंडर नहीं किया। आफ्ताब भाईजान, मुझे बड़ा आफ्ताब गर्व है। भाईजान, जब तक कोई पाकिस्तानी आपके पार्लियामेंट के अभिनंदन को अंदर याद आपके करता है ना, मिनिस्टर बोले जब थे तक कि कोई अगर शाम पाकिस्तानी तक अभिनंदन को याद वापस करता नहीं है। भेजा तो इंडियन आर्मी वहां पर, इंडियन एयरफोर्स तैनात है, वहां पे कभी भी आ सकती है। शेर खान ने, एक भारतीय फौजी, थोड़ी हिस्ट्री में जाइए, एक भारतीय फौजी पाकिस्तान को पिछले 5 साल से स्लीपलेस नाइट्स दे रहा है, तो सोचिए कि पूरी हिंदुस्तान की फौज आएगी तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा।
उसमें खत लिख के भाईजान, भेजा कि ये सोल्जर जो था भाईजान, एक बेशक फौजी हमारा आया, दुश्मन था, एक मगर विमान हमारा लेके लड़ा। आया, तो आपके शेर खान FCC जैसे को बंदे गिरा के गया, पूरा करने के लिए हवाई जहाज लेके आया, सुनिए, आपके एक सिस्टम को गिरा के गया, और पिछले 6 सालों से 2019 से 2025 अभी भी एक बंदे ने एक ब्रिगेड को engage किया। एक बार आफ्ताब भाईजान मनन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप एक बार उनकी बात। राहुल जी राहुल जी 93,000 शेर खान वापस किए थे। अरे शेर खान ने नींदें उड़ाती थी पूरी ब्रिगेडियर के, आपकी ब्रिगेड के, तो अभी करके तो देखें। ये अपने दुश्मन की तारीफ करने के लिए जज्बा भी चाहिए और कलेजा चाहिए। कलेजे की बात मत करिए, कलेजा है ही नहीं। पीठ पे वार करते रहने वाले हम। कलेजा तो पाकिस्तान में है ही नहीं। शुक्र है जज्बे के साथ हम लड़ते हैं और एक ही बंदा हमारा काफी है पूरी बटालियन पे। आगे बढ़े। आपने 93,000 वापस किए थे, 93,000 आगे बढ़े यार, आगे बढ़े। अभी आप शेर खान पे, हिंदुओं के सामने अरे शेर खान को भी 93,000 में 71 की लड़ाई में वापस किया था। शेर खान ने पूरी ब्रिगेड को एंगेज कर दिया था, नींद उड़ाती थी। फौज के सामने ढाका के बाहर 2000 की फौज खड़ी थी और 93,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर कर दिया था। भाई साहब पेंट हो गई थी लोगों की। आज ढाका कहाँ है? वो मक्के तो मैं अपने घर में रख भी नहीं सकता। आप ये कौन सा मक्का दिखा के, अरे आज ढाका वो मक्का लेके भीख मांगने जाता है पाकिस्तान, आज श्रीलंका कहाँ है? और वहाँ से भीख भी नहीं मिलती। हालत अब ये है। आज ईरान कहाँ है? और कल पाकिस्तान कहाँ होगा? पाकिस्तान ये सारे देश के बारे में आप बोल रहे हो, और पाकिस्तान कहाँ होगा? कहीं नहीं होगा, नक्शे में से ही गायब हो जाएगा। आप आफ्ताब भाई पाकिस्तान का फ्यूचर क्या बताएंगे? आप अगर किसी को बताएंगे पाकिस्तान का फ्यूचर कहाँ पर है? नेपाल के ऊपर कब्जा किया हुआ है, चाइना का है, अकेले पड़े हुए हो। आफ्ताब भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? पाकिस्तान अभी कहाँ पर है और आने वाले समय में पाकिस्तान को आप कहाँ पर देख रहे हो? आप क्या कह रहे हो जो अभी हालचाल पाकिस्तान के हैं? पाकिस्तान बेहाल हो रखा है, पाकिस्तान पे कर्जा चढ़ा रखा है, पाकिस्तान पे खाने को नहीं मिल रहे, लोग वहां पर भटक रहे हैं। तो सही पाकिस्तान का है, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ ना पाकिस्तान का। कटोरा लेके पाकिस्तान का है, दुनिया के गोले में पाकिस्तान एक सुना हुआ है पाकिस्तान के लोगों की आवाज, उनकी चीखें हमने सुनी हुई है। इस वक्त दुनिया में जो है नंबर 1 सुपर पावर ताकत रखने वाला मुल्क के लड़ने वाला। आप पता नहीं कहां से ये सीख के आए हो, आपको पता नहीं कौन सी जगहों से आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। यूनिवर्सिटी चल रही है शायद आपकी। 1947 यूनिवर्सिटी कौन सी है भाईजान? 1947 में 2 मुल्क आजाद हुए, एक अभी भी मग्गे पे अटका है, दूसरा चांद पे जाके पहुंचा है। अब कहाँ पे भाई साहब कहाँ लेके जाना है पाकिस्तान को? भाईजान हालत क्या है देखिए। हम भी चांद पे पहुंचे यूएई भीख मांगने गए, हमको इस मग्गे में भीख दे दो, उन्होंने भीख दी नहीं। आफ्ताब भाई अभी आप आफ्ताब भाई झंडे पे चांद की बात नहीं कर रहे, चांद पे झंडा फैलाने की बात हो रही है। चीन के गुलाम बने बैठे हो। कैसे होगा ये हल? कैसे होगा? बातचीत कैसे होगी? सही है ये बातें झंडे पे जो चांद होता है उसमें फर्क है, और चांद पे जाके झंडा फहराना वो एक फर्क है, वो शायद आपको नहीं पता है। देखिए ये इस तरह के डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है। आप पाकिस्तान इररिलेवेंट है, किसके लिए रेलेवेंस है पाकिस्तान? किसी के लिए नहीं है। उसके ऊपर जबरदस्ती हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? हमें अपने सिक्योरिटी के बारे में बात करनी चाहिए। आफ्ताब की इनकी बात बिल्कुल सही है। हम पाकिस्तान के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की रेलेवेंस क्या है? पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना है? हम उससे हमारा आतंकवाद से लेना देना है ना, और आतंकवाद को बना दिया पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान से इनडायरेक्टली तो हमारा कनेक्शन बन गया ना राहुल। 26 लोगों की बलि चढ़ा दी। आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे बात ना करें, बिहार पे इलेक्शन पे बात करें। 26 लोगों की बलि चढ़ा के वहां पे बीजेपी को जितवाना है, इस पे बात करें। ये सब स्ट्रेटेजी वहां पे बैठे बैठे आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? आफ्ताब जी आप वहाँ पे बैठे बैठे यहाँ की स्क्रिप्ट आप वहाँ पे स्क्रिप्ट राइटर हो। आफ्ताब जी आपकी इंफॉर्मेशन, आपके इनपुट्स सारे गलत आ रहे हैं, शायद आपको जानकारी नहीं है, या फिर जानकारी होने के बावजूद आप अलग चेहरा अलग मुखौटा बना के घूम रहे, जैसे आपकी वहाँ की मीडिया जो चल रही है वो मीडिया भी वहाँ की पता नहीं अलग ही लोगों की बलि चढ़ा के बिहार पे जीतना था। इनके कोई रेलेवेंस नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। हम काहे को इनके बारे में इनको तवज्जो दे रहे हैं? इसलिए तवज्जो देना है। हम यही तो बात है, चढ़ाई जाएगी, कुछ लेना देना है। युद्ध की वेदी पे बलि तो अब चढ़ाई जाएगी, परेशान क्यों? कुर्बानियां तो अब दी जाएगी। अब नहीं है तो परेशान क्यों है? नींदें क्यों उड़ी हुई हैं? हमने वाघा बॉर्डर बंद कर दी, एयर स्पेस बंद कर दिया, तो आपकी नींदें क्यों उड़ी हुई हैं? जब औकात नहीं है तो आप अपनी औकात में रहें। फिर
हमारे पास पैसा है, हमारे यहाँ से जाने वाले अरे लंबा रास्ते से जाएंगे, पैसा देके जाएंगे, उसमें हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको प्रॉब्लम है। कोई नहीं है। બિલકુલ રાહુલજી, આપની વાત એકદમ સાચી છે, આપની વાત બિલકુલ સાચી છે। हमारा जो कनाडा में क्या सूरत हाल है, अमेरिका में क्या सूरत हाल है, रॉ के लिए कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा, रॉ के लोग जाके वहां पे खालिस्तान तहरीक के लोगों को मार के आते हैं, उस पे क्या कहेंगे फिर? अच्छा ठीक है, खालिस्तान आफ्ताब जी सुनो, तहरीक के लीडरों आफ्ताब को जी वहां सुनो, पे रॉ के लोग आफ्ताब मार के जी, आते हैं, आपका वीजा बंद हो जाता है। आफ्ताब जी, पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है? ये आफ्ताब तो जी, सूरत हाल है आपकी। आफ्ताब जस्टिन जी, ट्रूडो बातें को क्या सुनने कहेंगे भी- कि उसने सुनने आपको की भी आईना आदत दिखाया, डालो, पूरी कितना दुनिया को बता बोलोगे? दिया कि रॉ के लोग इन्वॉल्व है। आफ्ताब जी, पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है? वॉर चाहती है, और अगर वॉर होता है तो क्या पाकिस्तान सह पाएगा वॉर? अरे फिर आप भी तो नहीं सह पाएंगे ना, क्या हम हमने कहां दुनिया से पे नहीं इनके सह बैठे हुए पाएंगे? हैं? हम पाकिस्तान कहां से नहीं गोली सह पाएंगे? चलाएंगे तो हम जो है हमारे फूल की पास माला पूरी लेके ताकत आपकी है, सीमा पर खाली खड़े हो हम जाएंगे, न्यूक्लियर के जिसमें भरोसे आ नहीं जाए। बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के अभी के हालात को देखते हुए पाकिस्तान अगर युद्ध होता है तो आप आने वाले समय में पाकिस्तान सिर्फ नक्शे पे दिखेगा भी नहीं। आफ्ताब जी, जो अभी की हालात आपकी वहां पर है, कंगाली के तौर पे आप जा रहे हैं, आप उस दिशा में है, आपको पता भी है कि वहां के लोग क्या चाह रहे हैं, वहां की आवाम क्या चाह रही है। यहां से जो अभी वहां पर जो जा रहे थे पाकिस्तानी, जितने भी लोग यहां से डिपार्ट हो रहे हैं अभी भी, वो लोग कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना है, चाहे हमें भारत में आप गोली मार दो। यहाँ की जनता, आपकी आवाम ये कह रही है इंडिया में आके कि हमें पाकिस्तान बिल्कुल नहीं जाना है। कौन कह रहा है? अभी हमारे यहाँ पे जो भी डिपोर्ट किए जा रहे जितने भी पाकिस्तानी नागरिक है, जो भारत के अंदर से अभी पाकिस्तान जाने का जो आदेश मिला है, उसके बाद जो जा रहे थे एयरपोर्ट पे, वहां पे रोते हुए, बॉर्डर पे रोते हुए दिखे कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना है, वहां पे हमारे साथ अत्याचार होता है, हमारे साथ जुल्म होता है। वहां की आवाम आपकी ये कह रही है कि वहां पे न तो खाने को हमें कुछ मिलता है, न वहां पे एजुकेशन लेवल का कोई सिस्टम बना हुआ है। जो आपकी जो बातें हमें हमारे पास आ रही है, वो आपकी बातों से भी यही लग रहा है कि एजुकेशन सिस्टम वहां पे कितना लो लेवल तक गिर चुका है। क्या बात कर दी आपने? आप बात कर रहे हो हमसे युद्ध करने की। सबसे पहले आप अपना आंतरिक विवाद, आपकी आर्मी चला रही है, आईएएस चला रहा, आईएसआई चला रहा है, या फिर आपकी जो जितने भी वहां पर जितने भी आतंकी कैंप है, आतंकी आका आपके वहां पे बैठे हुए, वो आपका पाकिस्तान चला रहे हैं। आपका पाकिस्तान कौन चला रहा है, अभी तक वो क्लियर नहीं हो पाया है। अरे सुने तो सही ना, 2019 में मैं यूनाइटेड नेशन में आपके ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीच कर रहे थे। वो कह रहे थे कि देखें, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मसला है शौचालय का। करोड़ों लोग जो है ट्रेन की पटरियों पे शौचालय की सहूलत ना होने की वजह से जाते हैं। सुनिए ना, मैं नहीं कह रहा यार, तो भारत उस पे काम कर रहा है, नरेंद्र मोदी कह रहा है, भारत उस पे काम कर रहा है, ना कि पाकिस्तान की जैसे वॉर के सहारे बैठा हुआ है, आतंकियों के या किसी और फंडिंग के सहारे बैठा हुआ है। हमारे पास आप पढ़े लिखे हैं दोनों एंकर, आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा 2019 की स्पीच निकाल के हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में है तो भी हम समझ सकते हैं क्योंकि हम हिंदी में पढ़े लिखे हैं। सुनिएगा, 2019 में आपके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं यूनाइटेड नेशन के फ्लोर पर कि 2019 में के शौचालय की सहूलत नहीं है, और हमारे करोड़ों लोग जो है ट्रेन की पटरियों पे जाके शौचालय की सहूलत ना होने की वजह से वहां जाते हैं। ये तो तो वहाँ हिंदुस्तान पे है। क्या चल रहा है? पाकिस्तान में अभी भी, पाकिस्तान में तो अभी भी वही चल रहा है। वो मग्गे पे ये आईना है, आपको तो मैंने क्या दिखाया। पाकिस्तान? ये आपके भारत क्या क्या है भाई साहब? भारत का विकास, शौचालय नहीं है तो शौचालय भाईजान बना मग्गे है। पे और शौच पे रखे हो अभी भी। वो भाई विकास थोड़ा आगे सिर्फ बढ़ो। कागजों में है, मीडिया पे है। विकास हमें पता है कि दलित के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पर दलित के साथ क्या हो रहा है। आप हमें अभी विकास का थोड़े दिन पता रह है जाइए, कि सिखों वहाँ के पे साथ क्या पानी हो अभी रहा है। बंद ही होने हमें वाला पता है, कि शौचालय बंगालियों के जाने की साथ आपको क्या भी हो रहा है। तकलीफ ही होने हमें वाली पता है कि फिर। वहाँ पे मुसलमानों के भाईजान साथ क्या चलो हो रहा अच्छा है, ये विकास है। भाईजान अच्छा है, आपके यहाँ तो एक छोटी सी रोड बना के लिए कि चाइना आता है, फिर चाइना पे अटैक होता है कि हमारे लोकल्स के रोजगार खाए जा रहे हैं। बेल्ट एंड रोड चाइना, अभी पाकिस्तान क्या है, चाइना का गुलाम बनकर बैठा है। हमारे यहाँ रोड कम से कम हम तो बना रहे हैं। जैसे आप ट्रेनें जैसे कौन चला इसराइल रहा के गुलाम हो। है? कश्मीर में श्रीनगर तक ट्रेन पहुंची है, कौन चला रहा है ट्रेन? हम चला रहे भाई हैं। आप हमारे यहाँ चाइना नहीं आया, चाइना को हमने नहीं बोला कि आओ रोड बनाओ, आओ ट्रेनें चलाओ, आओ रेलवे लाइनें बिछाओ। अरे इसराइल बिक के चुके आप हो भाई पार्टनर हो, साहब, फिर क्या पूरा करोगे? देश चीन को बिक चुका है। देखो अरे फाइनेंशियली देश खत्म हो इसराइल के चुके पीछे हो, डूब रहा है। और हर छोटी बात में वो मक्का और शॉर्ट को लेके आ रहे पीछे छुप रहा है फिर। हो। डिबेट को किस तरफ ले गए? आपकी
देखिए देश, पूरा देश जो है वो मध्य और शॉर्ट पे ही अटका है। एक फौजी आया 2019 में, एक फौजी आया, पाकिस्तान इतना डरा हुआ है कि 6 साल से उसके बग्गे को आधा पाकिस्तान लेके घूम रहा है। आपके यूके की एम्बेसी का वो अधिकारी वो बग्गा लेके घूम रहा है। आप बेसिक रियलिटी नहीं बताया आपके देश में। हम सुकून से सोए हुए हैं। आफ्ताब जी, आपको अपनी बेसिक रियलिटी आपके देश की पता ही नहीं है। आपको खाली न्यूक्लियर में कितना आगे है पाकिस्तान, खाली वो ही पता है आपको, बाकी तो कुछ पता ही नहीं है अंदर क्या चल रहा है, बढ़ रहे हैं। सुकून से सोए हुए हैं। दिखा दो, 10 का सिक्का डालता हूं। ये आपके चंद दिन जो है, ये आपकी पचास जो है, जो एक बार आपको सुना देते हैं। मोदी जी की इलेक्शन की मुहिम जो है, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आफ्ताब जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। पाकिस्तान के लोग जो यहाँ से अभी डिपोर्ट होने वाले हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं वो आपको एक बार सुनाते हैं, आप ध्यान से सुनना। हमें नहीं जावाता चाहता, हमें यहाँ मरीदा से बाकी जासो नहीं पाकिस्तान में नहीं, हमें नहीं जावाता चाहता, हमें यहाँ मरीदा से बाकी जासो नहीं पाकिस्तान में। सुना आफ्ताब जी क्या बोला, सुना आपने? हम यहाँ पे मर जाएंगे पर पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ भी जो सिख मौजूद हैं वो कहते हैं हिंदुस्तान नहीं जाएंगे, हमें हिंदुस्तान की एक मार देंगे। आपको गुजराती शायद से समझ नहीं आई हो तो मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देती हूँ। आफ्ताब जी, आपको एक मिनट। रेफरेंडम होता है वो बर्तानिया में सिख कहते हैं कि हमें इंडिया में मार देंगे। जो कनाडा में रेफरेंडम होता है, सिख खालिस्तान तहरीक करती है, वो कहते हैं हमें हिंदुस्तान में मार देंगे। जो अमेरिका में रेफरेंडम होता है वो कहते हैं हिंदुस्तान में मार आपके देशवासियों में आपकी सरकार का आपके यूके एम्बेसी का वो अफसर, ISI का वो अधिकारी वो मग्गा दिखा रहा था, अभिनंदन साहब का फोटो दिखा रहा था। बड़ा अच्छा लगा ये जान के कि अभिनंदन हमारा देश में हीरो है, आपके देश में भी हीरो है। मग्गा दिखाओ, मैं 10 का सिक्का डालता हूं। पाकिस्तान को जिस चीज की जरूरत है वो चीज हमें देनी चाहिए। मैं बड़ा खुश हूं। अभिनंदन हमारे लिए हीरो ही है, असली हीरो हमारे लिए अभिनंदन ही है। हमने जो है आपके साथ मुआहदा जो भेज दिए, अभी वो खत्म करते हैं, अभी भेज के देखिएगा तो फिर उनके साथ क्या करेंगे। क्या करोगे? अभी ऐसी हालत भी नहीं रहेगी आफ्ताब भाई, जिस हिसाब से अभी आपकी हालत है उस हिसाब से अब बिल्कुल ऐसा चांस नहीं मिलेगा आपको कि आपको कोई वहां से भेज सके। पर अभी आप अगर कश्मीर की बात कर रहे हो, अगर आप कश्मीर की बात कर रहे हो, POK भी भारत में आएगा, POK को भी लेकर के जाएंगे। आपके गिलगिट और बलूचिस्तान के जो मूल अधिकार है वो आप देने में निष्फल रहे हो, आप दे नहीं पाए हो। गिलगिट आप संभाल नहीं सकते, बलूचिस्तान आप संभाल नहीं सकते। अरे POK तो बहुत दूर की बात है और कश्मीर तो बहुत दूर की बात है भाई। अरे सुने तो सही, खुली आंखों से सपने देख रहे हैं आफ्ताब जी। 48 घंटे में आफ्ताब जी खुली आंखों से सपने देख रहे हैं, नींद से जाग जाओ। अभी जो पानी बचा है थोड़ा आंख में ऐसे डालो, फिर तो वो भी नहीं मिलने वाला है। अरे थोड़ी नींद भगाओ आप आफ्ताब जी। पानी की बात आप 48 घंटे में क्या करेंगे, ये सिर्फ मुझे ये आप बता दें। जो करेंगे वो बताने की जरूरत नहीं है, जो होगा तो देख लेना आपके क्या हो रहा है आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार अपन सुन लेते हैं, हम भी देख लेंगे। कर्नल राहुल शर्मा जी, कर्नल राहुल शर्मा जी अपने साथ जुड़े हुए हैं, समझेंगे और हम पानी बंद करने का जवाब भाई कर्नल राहुल शर्मा जी अपने साथ जुड़े हुए, उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या स्थिति रही थी पहले, अभी की क्या स्थिति है, कितना बदलाव आ चुका है। पहले इंडिया आप जो देख रहे थे वो क्या था, आज का इंडिया क्या है और पाकिस्तान कहां से कहां चला गया वो भी आपको बता देंगे। राहुल जी। मैं क्योंकि एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आया हूं, मैं अपने जो फौज की जिंदगी थी और जो मेरा इंटरेक्शन हुआ है पाकिस्तानी सेना के साथ और जो मैंने देखा है मैं उसके बारे में बात करूंगा जी। कि जब मैं 90s में फौज में गया था तब हमारी फौज को उतनी फ्रीडम नहीं रहती थी एक्शन लेने जी, और उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी भी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। आज ये हालत हो गया है कि इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो गई कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी तो हमारे लिए इररिलेवेंट सी हो गई है। आप बताइए हम किस मामले में पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं? किसी मामले में नहीं सोचते हैं। कभी हम ये सोचते हैं कि नहीं हमारा ट्रेड बढ़ेगा पाकिस्तान के साथ, हम नहीं सोचते। बांग्लादेश के साथ था हमारा अच्छा ट्रेड था, अभी जो भी हालत वहाँ पे पॉलिटिकल और सोशल वहाँ पे हालत हुई है, चीजें बदलती रहती हैं, बदल गई है, कोई बात नहीं। लेकिन क्या हमने मान लिया सार्क में क्या हमने बांग्लादेश में आपका क्या हाल हुआ? अबे चुप रहा, बांग्लादेश क्या हाल हुआ? बोले जा रहा है कुत्ते के बच्चे तुम हो।
एक मिनट ऐसी एक मिनट लैंग्वेज 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 थोड़ा मेंटेन रखिएगा सर जी। 2 मिनट आफ्ताब भाई भी मारेंगे। नहीं देख रहे हैं, हमें ये सब गाली नहीं सुनी है। 2 मिनट लैंग्वेज को थोड़ा मेंटेन रखिएगा, बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको। समझाएं, लगाम दे कुत्ते के बच्चे को। यहाँ पे किस तरह से बात होती है? तुमको नहीं कहते लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करते हैं। आप अपनी संभाल तो के बात बंद करो, कीजिए। इसको हटाओ यहाँ से। हटाओ यहाँ से। क्यों ऐसे नमूने को ले हमारे जैसे लोगों को बुलाते हो इनसे बात करने के लिए? आप लैंग्वेज संभाल के बात करिए भाई। 2 मिनट आफ्ताब भाई, आप एक तो मैनर्स लेस हो रहे हो यहाँ पे। आप अपनी मैनर्स देखा किस हिसाब से राहुल जी એટલે आपने કુશાગ્ર देखा? એટલે બિલકુલ કુશાગ્ર બિલકુલ. આ એજ છે, આ એજ એમના સંસ્કાર બતાવી રહ્યા છે। આપણે કોઈ ન્યૂઝ કેપિટલ આવી લેંગ્વેજને કોઈ સપોર્ટ નથી કરતું, કે આવી કોઈ કેટલી ગામને હદે, સપોર્ટ નથી કેટલી કરતું। હદે, ફ્રસ્ટ્રેટેડ કેટલી છે હદે? એ વ્યક્તિ, એટલે મન ફાવે જે મનમાં આવે એ રીતે વાત કરી રહ્યા છે। બિલકુલ, કદાચ એમની જુઈ. પાસે બોલવા માટે કંઈ નથી। બિલકુલ જુઈ, કેટલી હદે આ બોખલાઈ ગયા છે અને આ બોખલાહટ છે તે આ પાકિસ્તાનીઓના ચહેરા પર અને તેમના શબ્દોમાં ચોક્કસથી જોવા મળે છે કે આટલી હદે એ લોકો બોખલાઈ ઓકે. ગયા છે અને મનનભાઈ. હવે અપશબ્દો બોલવા પર આવી ચૂક્યા છે। તેમને ભાન નથી કે તે કોને રિપ્રેઝેન્ટ કરી રહ્યા છે આ ચેનલ પર બેસી અને તમે પાकिस्तान भाई आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो અને આ और आप પાકિસ્તાન ऐसी નથી, बदतमीजी આ करोगे। પાકિસ્તાન નથી, આ ભારત છે અને ભારતને પોતાના સંસ્કારો એટલા જ ગમે છે અને એટલા જ વહાલા છે। क्या ऐसा એટલે है आपका અમે पाकिस्तान? આવી કોઈ લેંગ્વેજને, આવા કોઈ અપશબ્દોને સમર્થન નથી કરતા। મનનભાઈ આપની પાસે આવીએ। મનનભાઈ, પહેલા તો જે પ્રમાણે આપણે જોયું, જે લેંગ્વેજનો યુઝ કર્યો છે એ વિશે તો વાત જ નથી કરવી, પણ જે રીતે બોખલાયેલા છે, કદાચ એમની પાસે બોલવા માટે હવે કંઈ નથી એટલે મન ફાવે એમ બોલે છે। ઓકે મનનભાઈ, આપની પાસે આવું એ પહેલા અત્યારે આ ચર્ચામાં રોકાઈએ છીએ એક નાનકડા બ્રેક માટે।